ریاست تلنگانہ کی خودداری و عزت نفس پر حملہ کرتے ہوئے بیان بازی کرنے والے بی جے پی رکن پارلیمنٹ کے تبصروں کے خلاف سخت احتجاج کیا گیا۔ AIYF کے ریاستی صدر ڈاکٹر سید ولی اللہ قادری کا احتجاجی و مذمتی بیان جاری ہوا۔ AIYF ورنگل ڈسٹرکٹ کمیٹی کے زیر اہتمام بی جے پی رکن پارلیمنٹ تیجسوی سوریا کمار کی تقسیم تلنگانہ کے خلاف توہین آمیز غیر ذمہ دار تبصروں کی سخت مذمت کرتے ہوئے سید ولی اللہ قادری نے کہا، ان تبصروں کی وجہ سے تلنگانہ کی تشکیل کے تاریخی عمل کی اہمیت کی توہین ہوئی۔ ورنگل کے پوچامو میدان سینٹر میں احتجاجی پروگرام منعقد کیا گیا۔ کارکنوں نے بی جے پی کے خلاف نعرے لگائے۔ تیجسوی سوریا کا علامتی پتلا بھی نظر آتش کیا گیا۔ ریاستی وزیر اڈلوری لکشمن کمار نے آج جگتیال موتے پارٹی آفس میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، جگتیال منعقدہ BRS کا جلسہ عام ہے یا جیون ریڈی کی شمولیت۔ انہوں نے کہا، جب جیون ریڈی 40 سال سے کانگریس میں تھے، پارٹی چھوڑتے ہی ریونت جائے تبدیلی آنا چاہے، انہیں KCR کے پاس خدائی بھیجا ہے کہا اور ریونت ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کہنے پر تنقید کی۔ انہوں نے سوال کیا کہ اگر واقعی تبدیلی چاہتے ہیں تو ہم جیون ریڈی سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ BRS اسمبلی انتخابات کے بعد ضمنی انتخابات اور گرام پنچایت کے انتخابات کیوں نہیں جیتے؟ جیون ریڈی جو 10 سال تک اقتدار میں تھے، BRS نے لوٹا اور تنخواہیں نہیں دیے۔ کالیشورم کے خلاف بات کرنے والے جیون ریڈی اب کالیشورم اور تبدیلی کی بات کر رہے ہیں۔ ریاست میں BC SC ST خواتین ونگ کی صدور کا تقرر عمل میں آیا ہے۔ ضلع ورنگل سے تعلق رکھنے والی مسز ایرابیلی سورنا کو تلنگانہ اسٹیٹ کانگریس پارٹی خواتین ونگ کے صدر کے طور پر مقرر کیا گیا ہے۔ ورنگل ضلع مہیلا کانگریس نے آج ہنمکنڈا کانگریس پارٹی دفتر میں ان کے لیے ایک پروقار میٹنگ کا انعقاد کیا تھا۔ ورنگل ضلع کانگریس پارٹی کے صدر محمد ایوب نے میٹنگ میں حصہ لیا۔ ایوب نے ریاستی قیادت کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے ایرابیلی سورنا گارو کی تقرری کی، جو ایک سینئر کانگریس لیڈر تھے جنہوں نے پارٹی کے مشکل وقت میں جھنڈا اٹھایا تھا۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی، نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا، ریاستی صدر مہیش کمار گوڑ، انڈین مہیلا کانگریس کے صدر الکا لامبا گارو کے جانب سے بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ ریاستی وزیر اڈلوری لکشمن کمار نے جگتیال میں کانگریس سیوا دل کی پرچم سلامی پروگرام میں بحیثیت مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر کانگریس سیوا دل کے ریاستی سیکریٹری مکیش کھنہ کی قیادت میں کانگریس پرچم سلامی کے پروگرام میں DCC صدر گے نندیا نے شرکت کی۔ اس موقع پر ریاستی وزیر نے خطاب کیا اور کہا، کانگریس سیوا دل کانگریس کو کامیابی دلانے میں ہمیشہ کلیدی کردار ادا کرتی رہی ہے۔ کانگریس سیوا دل کے کارکنوں کو حکومت کے ذریعے نافذ کی جائے اسکیمات کو عوام تک پہنچانے کے لیے کام کرنا چاہیے۔ اس موقع پر میونسپل چیئرپرسن سمندلا وانی سرینواس، PCC ممبر گری ناگا بھوشنم، ٹاؤن صدر کوتا موہن، PCC سیکریٹری بنڈا شنکر، اقلیتی کانگریس صدر منصور اور دوسرے موجود تھے۔ جگتیال سے جاترا شروع ہونے جا رہی ہے۔ جگتیال میں تہوار کا ماحول اور سیاسی ماحول بھی گرم ہے۔ KCR 20 تاریخ کو جگتیال پہنچیں گے۔ تمام انتظامات کا جائزہ لینے BRS پارٹی ورکنگ پریزیڈنٹ KT اور سابق ریاستی وزیر ہریش راؤ نے آج جگتیال پہنچے۔ منی اسٹیڈیم جگتیال میں جاری انتظامات کا جائزہ لیا۔ بچکنڈا میں مردم شماری کے سلسلے میں اساتذہ کے لیے آج تربیتی پروگرام منعقد ہوا۔ اس پروگرام میں MRO وینو گوپال، MIO نواس ریڈی، ارشاد علی، دیگر اساتذہ نے شرکت کی۔ اس موقع پر مردم شماری کے پیش نظر 3 روزہ تربیتی پروگرام 18، 20، 21 تاریخ کو ہو رہا ہے، جس میں تمام اساتذہ کی شرکت ضروری ہے۔ اساتذہ سے اپیل کی جاتی ہے کہ اس تربیتی پروگرام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ پرجا پالنا پرگتی پرانالکا پروگرام کے حصے کے طور پر ضلع کلکٹر ڈاکٹر ستیہ شاردا نے ضلع کلکٹریٹ کانفرنس ہال میں پیٹرول پمپ مالکان کے ساتھ میٹنگ میں حصہ لیا اور کلکٹر نے سب کو روڈ سیفٹی کے لیے ذمہ دار بننے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے پیٹرول پمپ مالکان کو ہدایت دی کہ وہ نو ہیلمٹ نو پیٹرول کی پالیسی پر سختی سے عمل کریں۔ نمبیا پیٹ میں BJP منڈل صدر کوڈے رمیش کی قیادت میں انوکھا احتجاج کیا گیا۔ کارکنان نے آنکھوں پر سیاہ پٹیاں باندھ کر احتجاج کیا اور ان کارکنوں نے کہا، تاریخی بل کی مخالفت خواتین کی ترقی کے خلاف ہے۔ انہوں نے وزیر اعظم مودی کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کیا۔ سید خواجہ قدرت علی پبلسٹی سیکریٹری کمرشل ٹیکس ایسوسی ایشن نے اپنے ایک بیان میں کہا، ریاست تلنگانہ کے نان گزیٹڈ ملازمین کی ایسوسی ایشن کے صدر سجاد حسین کی شاندار نمائندگی اور ان کے شب و روز ریاست کے کمرشل ٹیکس کے ملازمین سے خصوصی دلچسپی کے نتیجے میں مجاہد حسین نے حیدرآباد میں رگھونند راؤ GST کمشنر سے بارہا
नुमाइंदगी के जरिए नॉन गजेटेड एम्प्लॉयज महकमे कमर्शियल के देरीना मसाइल के एक सुई में कामयाबी हासिल कर ली। उन्हें दिली मुबारकबादी देते हुए रघुनंदन राव जीएसटी कमिश्नर से इज़हार तशक्कुर करता हूँ। मुस्तकबिल में भी उम्मीद रखता हूँ कि हमारे मसाइल को हल किया जाएगा। जिले के बी आसिफाबाद के कागज नगर के राजीव गांधी चौराहे हदूद में डीजीपी सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस नितिका पंत आईपीएस की हिदायत के मुताबिक अराइव अलाई प्रोग्राम के तहत डीएसपी मोहम्मद वहीदुद्दीन ने अपने हमरा टाउन सर्कल इंस्पेक्टर प्रेम कुमार, रूरल सर्कल इंस्पेक्टर स्वामी, सब इंस्पेक्टर सुधाकर के अलावा पुलिस मुलाजिमीन के साथ मिलकर डीएसपी मोहम्मद वहीदुद्दीन ने कानून के मुताबिक हेलमेट पहनकर मोटरसाइकिल चलाने वालों की निशानदेही की और उन्हें गुलाब पेश करते मुबारकबादी दी। एल्लारेड्डी मुस्लिम वेलफेयर कमेटी सदर शेख गयासुद्दीन ने अपने कमेटी जिम्मेदारान सैयद मीर, मोहम्मद मुकरम अली, अजीजुर रहमान, अहमद पाशा, मोहम्मद यूनुस के साथ मिलकर आज आरडीओ प्रभाकर से मुलाकात की। SIR वोटर सर्वे करने वाले BLO को तमाम बूथ मराकीज़ पर मुखर्रर करने, आवाम को शोर दिलाने और उन्हें 2002 के वोटर लिस्ट में मौजूद नामों का मुआयना करते हुए आवाम की रहनुमाई का मुतालबा किया ताकि आवाम को 2002 की फहरिस्त में अपना नाम तलाश करने में मदद मिल सके, उनके खदशात भी दूर हो जाएं। एलआरडी म्यूनसिपल चेयरमैन पद्मा श्रीकांत ने आज बीटी रोड के कामों का मुआयना किया। एलआरडी निजाम सागर शाहरा से वार्ड नंबर 11 लिंगारेड्डी पेट में शिवाजी मुजस्सिमे तक 910 मीटर बीटी रोड की तामीरात रुकन असेंबली मदन मोहन की दिलचस्पी से HDF से फंड मंजूर किया गया, जो बहुत जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस मौके पर काउंसलर तिरुपति दशरथम और दूसरे मौजूद थे। जिले कांवड़ी मंडल पिटलम में आज सब इंस्पेक्टर बी अंजनेलू पूरी जमीयत के हमरा नेशनल हाईवे रोड नंबर 161 पर मोटरसाइकिल राहगीरों की काउंसलिंग करते हुए हेलमेट पहनने वालों को फूल देकर कवायद पर अमल करने पर मुबारकबादी पेश की। इसी तरह हेलमेट न पहनने वालों को रोक कर गांधीगिरी अंदाज में कानों में फूल डालकर काउंसलिंग की गई। इस मौके पर उन्हें जिंदगी की खातिर हेलमेट पहनने का मशवरा दिया। एलआरडी के मंडल निगम पेट में तामीराती जिले मजदूर संगम की जरिए खैरत काम कर रहे मजदूरों में लेबर कार्ड की तकसीम अमल में लाई गई। हर मजदूर को लेबर कार्ड बनाने का मशवरा देते हुए कहा गया कि लेबर कार्ड रखने वाले मजदूरों को 2 बेटियों की शादी पर फीकस 30,000 रुपये, उनकी जरूरियों पर भी 30,000 रुपये की इमदाद के हकदार होंगे। इस मौके पर नारायणा, श्याम, अब्दुल रज़्ज़ाक, गोपी और दूसरे मौजूद थे। जिले कलेक्टर गढ़वाल रिजवान बादशाह शेख ने कोगोटू मंडल के चमन खान दूरी गांव में आंगनवाड़ी मरकज और सरकारी प्राइमरी स्कूल का अचानक मुआयना किया। इस मौके पर कलेक्टर ने वहां मौजूद बच्चों से बातचीत की। उन्होंने स्कूल के तलबा को सीखे मौजूद पढ़कर गर्मजोशी से खुश आमदीद कहा। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा गट्टू मंडल एक ख्वाहिशमंद ब्लॉक है और वहाँ के अहदेदारों को दिया कि वो अभियान प्रोग्राम में 7 अशिया को 100% यकीनी बनाए। एलआरडी तामीराती मजदूर संगम इजलास के दौरान तय किया गया कि मेहनत और मशक्कत करने वाले मजदूरों को ही लेबर कार्ड जारी किया जाए और कहा कि नकली लेबर कार्ड को रोकने के लिए बांसवाड़ा असिस्टेंट लेबर ऑफिसर को म्यूनसिपल ऑफिस ग्राम पंचायत से सर्वे करने के बाद ही जारी करने के लिए कहा गया। इस मौके पर मारलू, साई बाबू, साइलू, कांताराव, दरगाह सिंह, लक्ष्मण, करीम, बाबू, प्रताप, गोपाल, बाबूराव, JR अमरू और दूसरे भी मौजूद थे। जिले हेडक्वार्टर 23 वार्ड में जारी सीसी रोड इंदिरा हाउसिंग की तामीराती कामों का मुआयना म्यूनसिपल चेयरपर्सन उमा रानी सिवास ने किया। उन्होंने कामों का जायजा लिया। मुताल्लिक़ हुकाम को हिदायत दी कि गर्मी के मौसम के पेश नज़र सीसी रोड पर मुनासिब वाटर क्यूरिंग को यकीनी बनाया जाए। इस मौके पर काउंसलर्स सुल्ताना बेगम, यूनुस, अनवर के सतैया, गणेश, वाजी, चिटी बाबू, सिद्दीक, देवदास, प्रेम, नागराजू, सूर्य प्रकाश के अलावा दूसरे मौजूद थे। रियासत तेलंगाना के नॉन गजेटेड एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन महकमे कमर्शियल टैक्स मुलाजिमीन के एसोसिएशन के सदर मुजाहिद हुसैन की क़यादत में मुलाजिमीन का एक वफ़द हैदराबाद में M रघुनंदन राव GST कमिश्नर से मुलाकात करते हुए इस बात पर इज़हार तशक्कुर किया। उन्हें शालपोशी गुलपोशी करते तहनीत पेश की कि तेलंगाना के 537 मुलाजिमीन को ACTO के अहदे पर तरक्की की राह हमवार करते रघुनंदन राव ने कमर्शियल टैक्स मुलाजिमीन की देर मुतालबा की इस सुई में अहम किरदार निभाया, जिसके सबब इन मुलाजिमीन ने खुशी की लहर दौड़ गई। कमिश्नर रघुनंदन राव ने इस मौके पर कमर्शियल टैक्स मुलाजिमीन की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया।
राजाना सिलसिला जिले के कबीरापेट में गांधी चौक पर तेलंगाना जागृति की जानिब से नए सियासी पार्टी के क़याम के सिलसिले में पोस्टर की रस्म में इजराई अमल में लाई गई। इस मौके पर जागृति कायद कोरा सुरेश पटेल वी सतीश कुमार की क़यादत में प्रोग्राम मुनक़्क़िद हुआ। इस मौके पर कोरा सुरेश पटेल ने कहा, समाजी तेलंगाना के क़याम के लिए ख़वातीन, नौजवान और तलबा की तरक्की को तरजीह दी जाएगी। शदीद गर्मी के पेश नज़र बल्दिया चेयरपर्सन उमा रानी सिवास मुसाफिर और अस्पताल आने वाले मरीजों की सहूलत के लिए आबदर खाने का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा, बढ़ती हुई गर्मी में आवाम की प्यास बुझाना एक बड़ी इंसानी खिदमत है। इस्लामाबाद PCH टीम की जानिब से अचानक कार्रवाई करते हुए गैर तौर पर दरमियानी अफराद मिडल मैन से खरीदे गए PDF चावल को जब्त कर लिया गया। ये कार्रवाई निजामाबाद कमिश्नर P साई चैतन्य IPS के अहकाम पर और CCSSP इंचार्ज मस्तान अली की निगरानी में अंजाम दी गई। जारिया माह की 20 तारीख को KCR के आने वाले जलसे के बारे में तबादला ख्याल करने के लिए जगतियाल के देवी सी गार्डन में BRS के अहम कारकुनों कायदीन के साथ खुसूसी इजलास का इनेकाद। इस मौके पर साबिक वज़ीर TG मर्जी ने खिताब किया और कहा, मैंने 4 दहाइयों तक कांग्रेस पार्टी की खिदमत की और मैं 20 माह से शदीद ज़हनी परेशानी में था और अब मैं खुद को खुशकिस्मत समझ रहा हूँ कि मुझे KCR की क़यादत में काम करने का मौका मिल रहा है। तेलंगाना के जिले जगतियाल के मेडिपल्ली मंडल के कुपलाकुंटा गांव से ताल्लुक़ रखने वाला 26 साल गाजारला अविनाश, जो बीटेक की तालीम अधूरी छोड़ चुका था, को साइबर फ्रॉड के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक अविनाश कतर में मुलाजिमत के दौरान शशि नामी शख्स के राब्ते में आया, जिसने उसे कंबोडिया में नौकरी का झांसा दिया। वहां पहुंचने के बाद वो साइबर मुजरिमों के चुंगल में फंस गया और मजबूरन उनके कहने पर भारतीय शहरों को धोखा देने लगा। अविनाश लोगों को सरमायाकारी, APK फाइल्स, OTP और डिजिटल अरेस्ट के नाम पर डरा धमका कर रकम वसूल करता और उसे मुख्तलिफ फर्जी बैंक खातों में मुंतकिल करता था। बाद में उसने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में एजेंट्स मुकर्रर किए और खुद भी फ्रॉड में सरगर्म हो गए। एजेंट्स को कमीशन देता और बाकी रकम अपने घर वालों को भेजता रहा। सिर्फ 15 दिनों में उसने अपने वालिद को तकरीबन 16 लाख रुपये मुंतकिल की। एक मुतासिरा शख्स की शिकायत पर तशवीश के दौरान पुलिस ने एक बैंक खाता विशाखापट्टनम के रिहायशी कृष्णा के नाम पर पाया, जिसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। इससे शशि का नाम सामने आए, जिन्होंने बताया कि वो सब अविनाश की हिदायत पर काम कर रहे थे। इसके बाद पुलिस ने अविनाश की नकल व हरकत पर नजर रखी और जब वो हाल ही में शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंचा तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया। हैदराबाद से कोची जाने वाली इंडिगो फ्लाइट के मुसाफिरों को इस वक्त शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा जब जहाज का एयर कंडीशनिंग सिस्टम खराब हो गया, जिसके बाद वो गर्मी की शिद्दत से परेशान हो गए। तकलीफ के बाद गर्मी से राहत के लिए मुसाफिरों को कागजात और मैगजीन से हवा करते हुए देखा गया। बरहम मुसाफिरों ने बुनियादी सहूलियत की कमी पर एयरलाइन के खिलाफ शदीद नाराजगी का इजहार किया। तैयारे में सफर किसी मुसाफिर ने इसका वीडियो बनाया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि मुसाफिर गर्मी से परेशान है, जबकि एक एयर होस्टेस को भी मुसाफिरीन को हवा करते हुए देखा जा सकता है। 2022 के जुबली हिल्स हिट एंड रन केस में बोधन के साबिक हुक्म असली आमिर शकील के बेटे राहिल ने तवील अरसे तक मफरूर रहने के बाद हफ्ते को पुलिस के सामने खुद सुपुर्दगी इख्तियार कर ली। हाजिर है कि 2022 में हैदराबाद के इलाका जुबली हिल्स रोड नंबर 45 पर पेश आए हादसे में फुटपाथ पर महूखाब बच्चा हलाक जबकि कई दीगर जख्मी हुए थे। इब्तदाई तहकीकात में सामने आया था कि हादसे के वक्त गाड़ी राहिल चला रहा था, ताहम वाक़े के फौरन बाद फरार हो गया था। इस केस ने उस वक्त सियासी रंग भी इख्तियार कर लिया था और मुलजिम को बचाने के लिए दबाव डालने के इल्जामात भी सामने आए थे। जराये के मुताबिक राहिल हादसे के बाद दुबई समेत दीगर मुकामात पर रूपोश था। हालिया अदालती अहकामात के बाद उसने खुद सुपुर्दगी की, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है और मजीद कार्रवाई के लिए अदालत में पेश किया गया। बताया जाता है कि अदालत ने उन्हें जमानत दे दी। तेलंगाना में 10वीं जमात SSC इम्तिहान की जांच 23 अप्रैल तक मुकम्मल होने का इम्कान है। इसके नतायज 4 या 5 मई को जारी किए जा सकते हैं। इस साल तलबा अपने नतायज व्हाट्सएप के जरिए भी हासिल कर सकेंगे, जिसके लिए बोर्ड ने नई सहूलत तारीफ कराई। हुक्काम के मुताबिक जिन तलबा ने व्हाट्सएप के जरिए हॉल टिकट डाउनलोड किया था, उन्हें नतायज खुदकार तौर पर उसी नंबर पर मौसूल होंगे। दीगर तलबा को हिदायत के मुताबिक हॉल टिकट नंबर दर्ज करना होगा, जिसके बाद उनका नतीजा स्क्रीन पर जाहिर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में जुम्मे के रोज एक मस्जिद का 35 फुट बुलंद मीनार बुलडोजर कार्रवाई के दौरान शहीद कर दिया गया। इससे कबल सुबह से दोपहर तक मस्जिद के बाहर मौजूद 5 दुकानें भी मस्मार की गई। इंतजामिया ने मीनार गिराने के लिए 2 हाइड्रा मशीनों का इस्तेमाल किया, जबकि एक मजदूर ने और छड़कर रस्सी बांधी, जिसे दोनों मशीनों से जोड़कर खींचा गया, जिसके नतीजे में मीनार जमीन बोस हो गया।
मौके पर जिले मजिस्ट्रेट राजेंद्र पंसिया और एसपी के बिश्नोई समेत 50 से ज्यादा पुलिस एहलकार तैनात रहे और मुकामी अफराद के जमा होने में पुलिस ने उन्हें मुंतशिर कर दिया ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। ये कार्रवाई मुबैना गैर कानूनी कब्जों के खिलाफ की गई है। हुकाम के मुताबिक मुबारकपुर बंदगांव में सरकारी जमीन पर मस्जिद, मदरसा, दुकानें और मकान तामीर किए गए थे, जिन्हें नोटिस जारी करने के बाद मरहलेवार हटाया जा रहा है। कुवैत की कौमी एयरलाइंस कुवैत एयरवेज ने बांग्लादेश के दारकूमत ढाका के लिए अपनी कमर्शियल परवाजें दोबारा शुरू करने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है। गैर मुल्की ज़राए अबलाग के मुताबिक कुवैत की कौमी एयरलाइन कुवैत एयरवेज का कहना है कि ये परवाजें सऊदी अरब के शहर दम्माम किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जरिए चलाई जाएगी। एयरलाइन के मुताबिक ढाका के लिए परवाज़ों का आगाज़ 24 अप्रैल से हो रहा है, जो हफ्ते में 2 बार ऑपरेट की जाएगी। कुवैत एयरवेज के कायम मुकाम CEO अब्दुल वहाब अल शती का इस हवाले से कहना था कि ढाका के रूट की बहाली मुसाफिरों की ज़रूरत और अहमियत के पेश नज़र की गई। हम अपने नेटवर्क को वुसअत देने और दम्माम ऑपरेशंस के जरिए तमाम मुकामात को दोबारा मुंसलिक करने के लिए मुस्तसिल कोशिश हैं। उन्होंने मज़ीद बताया कि दम्माम के जरिए हाल ही में जिन दीगर शहरों के लिए परवाज़ें बहाल की गई हैं, इनमें लाहौर, लंदन, काहिरा, इस्तांबुल, ओमान, मुंबई और दिल्ली शामिल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुवैत एयरवेज इस वक्त 14 मुकामात के लिए परवाज़ें चला रही है और बढ़ती हुई तलब के पेश नज़र मज़ीद रूट्स की बहाली पर काम जारी है।